আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আমিন। আয় আল্লাহ তাআলা, এই দুপুর বেলা সূর্য মাথায় করে নিয়ে মাবুদ গো, আমরা অনেক মানুষজন আজ উপস্থিত হয়েছি। মাবুদ, শুধু সম্প্রীতির সরকারকে কায়েম করার জন্য আজকের এখানে উপস্থিত হয়েছি। মাবুদ, নন্দীগ্রাম অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেছে। মাবুদ, নন্দীগ্রামের উপরে অনেক স্টিম রোলার অত্যাচার চলেছে। মাবুদ, তুমি এই সরকারকে আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠা দান করো। রব্বুল আলামিন, এই সরকার যাতে মানবতার পক্ষে কাজ করতে পারে সেই তুমি তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তুমি বিনাশ ঘটাও। আয় আল্লাহ, সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে এই পৃথিবী থেকে হটিয়ে যেতে পারে সেই তৌফিক তুমি দাও। আয় আল্লাহ, হিন্দু মুসলিম শিখ জৈন খ্রিস্টানকে ভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধনে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করো। আয় আল্লাহ, এই সরকারের বিরুদ্ধে যারা গাদ্দার হয়েছে, যারা কুচক্রী আছে, তাদেরকে তুমি হটিয়ে দাও। আয় রব্বুল আলামিন, এই সরকারকে তুমি প্রতিষ্ঠা দান করো। মাবুদ, এই সরকার যে হারে মানুষের জন্য কাজ করছে, ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর বুকে এরকম একটা মানবিক সরকার আমরা পাই নাই। মাবুদ, এই সরকারকে তুমি প্রতিষ্ঠা তুমি দান করো। মাবুদ, তুমি এই সরকারকে কবুল করো। আয় আল্লাহ, বিপুল ভোটে আমার নন্দীগ্রামের হাত থেকে তুমি বিজয় দান করো। রব্বুল আলামিন, তুমি আমার দোয়াকে তোমার পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহী দরবারে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করো। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া হাক কালিমাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রে খাবার খাওয়া ইলা দাও। পা 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 মিষ্টি আছে কিছু নেই মাদ্রাসার কিছু বিশ্বাসঘাত তো দেবে বলে আমরা আর যাইনি। বিশ্বাসঘাত বলে মত 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 আজকে আমি বিজেপি করে বলে এরা গুলে মেরেছে আমাকে। ওর ব্যবস্থা আমি করতাম, আমি মরে যাবো, আমি বাঁচবো না। আমরা বিজেপি করে বলে আমাকে মেরেছে। একদিন বল রেখেছিল আমাকে আজ মেরেছে। আমি বলছি তুই আর আসবে না না আসবে না না ওরে বাবা রে, ওরে মা মারি না। কি করবো বিজেপি করার অপরাধে? আজকে রাত্রিবেলা কি করবো আমরা? কোথায় যাবো? ভগবান আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও। আমার এই দুধের শিশু নাতনিকে মেরে ফেলবে। ভগবান, তোমরা কে কোথায় আছো? প্রধানমন্ত্রী, এই নরেন্দ্র মোদীজি, তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। নরেন্দ্র মোদীজি, এই জেপি নাড্ডাজি, আমাদের বাঁচাও। আমার দুধের শিশু নাতনি আমাদের মেরে ফেলছে। আমরা কোথায় যাব? আমাদের বাঁচান আপনারা। আমাদের বাড়ির উপরে কিভাবে বোম পড়ছে, পুলিশটা পরে এসছে। সব শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে পুলিশদের পায়ে পড়ছি। আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিন। আমাদের অপরাধ বিজেপি করা, আমাদের অপরাধ বিজেপি পার্টি অফিস করা। আমরা কোথায় যাব? আপনারা আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিন প্রধানমন্ত্রীজি, প্রাণ ভিক্ষা দিন প্রধানমন্ত্রীজি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো। তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে। তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর 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 এখন আর দেরি নয়। আমার 10,000 টাকা, এর ভেতরে সোনার জিনিস সব, এই যে ওপরে সব ছিল। আগে থানায় চলো, থানায় কমপ্লেন করবো।
যারা করেছে ওদের নামই কমপ্লেন করবো, বসে থেকে লাভ নেই। চল, এরা সর্বনাশ করে, কেউ দিনে দুপুরে ডাকাতি করেছে, এই পাতাগুলো সব খুলে নিয়েছে পর্যন্ত, সব এই যে এখানে বড় বড় বক্স ছিল, মেশিন বক্স সব নিয়ে যায়, তো দিনে দুপুরে ডাকাতি করেছে ওরা। এবার পার্টির নামে কি হচ্ছে, এগুলো ডাকাতি হচ্ছে, ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে, সব চারটে ফ্যান সব খুলে নিয়ে গেছে বড় বড়। কালকে যেভাবে এখানে মানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রায় দিয়েছে, আমরা সেই রায়কে মাথা পেতে নিয়েছি, কিন্তু যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের কর্মীদের ওপরে অত্যাচার করা হচ্ছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। আজকে প্রশাসন পুরো চুপ করে আছে, প্রশাসনের কোনো, আপনি নিজে দেখুন আমাদের কর্মীদের বাড়ির তাদের সর্বসম্বলটুকু পর্যন্ত তারা নিয়ে চলে গেছে, বাড়ির বাচ্চা সোনা গয়না থেকে শুরু করে টাকা পয়সা, তারা ঘর ছাড়া। তারপরে ওইখানে সমস্ত আপনারা নিজেরা দেখতে পাবেন যে এরকম ক্ষতি। আমাদের আরও একটি বাড়ি, তাদের এত মানে ঘরে কিচ্ছু নেই, সমস্ত লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এরা প্রত্যেকে গরিব মানুষ, মানে দিন আনা দিন খাওয়া লোক। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। এদিন আসলো সব এইখানে আধার কার্ড এদের কাছে করলো এখন আমাদের আসছে আসছে যাকে মেরেছে আসছে कोरोना का इंडिया कोरोना फैला रहा है, इंडिया इन्फेक्शन फैला रहा है, चाइना नहीं, वुहान नहीं, इंडिया है मेन विलन। इस तरह की चिट्ठियां उसी नैरेटिव को बल देती है नहीं देती हैं सर? देखिए अमन जी, 30 मिनट के बाद मुझे है, इसलिए 2-3 मिनट जरूर दीजिएगा। मैं अपने, और चूंकि सब हमारे मित्र हैं, तहसीन भाई भी मुझे बहुत है, मेरे परिवार, मेरी बेटी भी विदेश में है, लंदन में है, और परिवार के और कई सदस्य अमेरिका में हैं। देखिए मैं 1.5 साल से नहीं, 2 साल बल्कि हो गए। अरे ब्रिटेन के लोग आते रहे, अभी भी आ रहे हैं सहायता के लिए, अभी भी अमेरिका से लोग जरूरत होती है। हम तो प्राइम मिनिस्टर को दोबारा बुलाया था अभी, लेकिन क्या कहा, भारत से खतरा है, तो हवाई जहाज और बंद कर दिए गए, उनके प्रधानमंत्री तक भी नहीं आ सकते हैं। और जहां तक इसकी बात है वुहान की, मैं अपना नहीं, भारत का छोड़ दीजिए, जापान के नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक ने, जाके तहसीन भाई देख लेंगे डिटेल, मुझसे ज्यादा उनके पास गूगल का साधन है, और बिल गेट्स हैं, और वो लोग छोड़ रहे हैं। देखिए एक वायरस आया, नाम आप इंडिया दे दो, ब्राजील, इंडिया कहां, ब्राजील कहां, वहां नहीं बन रहा है वायरस, वो छोड़ रहा है। चलिए चीन से छोड़ दीजिए। दूसरा मेरा तर्क है कि आप इंटरनेशनल मीडिया में पहले यहां से भेजते हैं, हमारे लोग भी शामिल है, बल्कि मुझे तो रोज गालियां पड़ रही हैं अमन जी आपसे ज्यादा, कि मैं कहता हूं कि हम ऐसी सूचनाएं गलत क्यों दें, सही दें। मुझे तकलीफ है, शेष नारायण सिंह जी नहीं, मुझे तो रोज एक साहित्यकार, पत्रकार, मेरे साथी प्राध्यापक, तो ये कहना कि मैं कोई विरोधी दुश्मन नहीं हूं, और बल्कि यही मुझे कहा जाता है कि आप तो कांग्रेस साथ हैं, आज मैं किसी के साथ नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि विश्व में भारत की सोनिया गांधी वर्चुअल पीसी कर रही है, सीधे जाना पड़ेगा, भारतीयों के लिए पैसा आना है, आज इंडस्ट्री उधर, हाँ उनको से घोर बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा, इसको वापस कर दें, भारत से नहीं खतरा है, तो बचाइए। बुरे वक्त में इंसान की ना असलियत सामने आती है, मेरे हिसाब से ना सब याद रखा जाएगा। मैं तो बहुत ही तल्ख शब्दों में ताल ठोक के कहता हूं, सब याद रखा जाएगा, कौन इंडिया के साथ खड़ा है कौन नहीं। लेकिन सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दी इस वक्त, सुन लेते हैं एक बार। Because far too many for want of any medical help at all. And what is the Modi government doing? Instead of alleviating their suffering and pain, it has abdicated its fundamental responsibility and duties towards the people. The government's own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it.
the Parliamentary Standing Committee on Health and opposition parties had raised serious concerns regarding our preparedness. Yet, earlier this year, the Prime Minister arrogantly boasted that he had defeated the pandemic, and his party obediently felicitated him for his so-called success. Ignoring expert advice, the Modi government refused to strengthen the supply chain for oxygen, medicine, and ventilators. It failed to place sufficient orders for vaccine. Rather, he gifted many away to foreign countries in time to meet the needs of our people. Instead, it consciously chose to allocate thousands of crores for non-essential projects that have nothing to do with the people's well-being. Instead of helping desperate patients, some BJP governments have been using the state's repressive power to arrest people. Why and for what? Merely for crying out for help. They are cracking down on citizens groups who are trying their best to help. They are also compelling social media platforms and the media to obfuscate the truth and ignore the pleas of desperate citizens. As all of you know, Parliament had allocated rupees 35,000 crores in the union budget to ensure free vaccine for all. Yet, the Modi government has placed the burden on already stretched state governments. It has allowed differential pricing for vaccines. It has refused to enforce compulsory licensing to increase the vaccine production. হিন্দু সেবা দলের রাজ্য সভাপতি হিসাবে আমার কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে। আমার উপরেও আক্রমণ হয়েছে, আমার বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে, আমার লকার ভেঙে আমার সার্টিফিকেট সবকিছু, আমার সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে, আমার পরিবারের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে। তবুও এই লড়াইটা আমাদেরই ছিল এবং আমাদেরই থাকবে। আমাদের লড়াই আমাদেরকেই লড়তে হবে। কিছু নেতাদের পেছন পাকামির জন্য, ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এবং স্বার্থের জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এরকম দিন দেখতে হয়েছে, দিন দেখতে হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য বিশ্বাস করুন, যারা নিচু তলার কর্মী রয়েছেন, যারা গ্রাউন্ডে কাজ করেছেন, এই নেতাদেরকে বিশ্বাস করে, এই নেতাদের সমস্ত কথাকে বিশ্বাস করে তারা কোনো দোষ করেননি। তারা তাদের 100% দিয়ে গেছেন এবং তারপরেও আজকে এরকম কষ্ট আপনাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। যারা আজকে এই কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে 3-4টে CISF কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে আর বড় বড় কথা বলছে, তাদেরকে আমি ভরসা করি না। আগেও করতাম না, আপনারা জানেন, আমি প্রতিবাদ করেছি আগেও এবং তার জন্য আমাকে শোকজ করা হয়েছে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কারণ সত্যি বলতে আমি ভয় পাই না। যা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না এবং যেটা ঠিক হচ্ছে না সেটা ঠিক হচ্ছে না সেটা বলতে হবে, সাহস করে বলতে হবে, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে হবে। তথাগত বাবু যেটা বলেছে সেটাকে সমর্থন করতে হবে। এবং এই সময়ে সব থেকে বড় যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা, বিজেপি কর্মীরা যারা কাজ করেছে গ্রাউন্ডে, তারা আজকে আক্রান্ত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী ঘর ছাড়া, তাদের পরিবার আক্রান্ত, ছোট্ট দুধের শিশু সেও আক্রান্ত। যেই বোনটা পার্টি করতো না, তার পরিবারের কেউ পার্টি করতো, সেই বোনটাকেও গণধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এই সব কিছু আজকে কেন্দ্রের নেতৃত্ব বসে বসে দেখছে। যারা টিম এসছিল, অরবিন্দ মেনন, কৈলাস বিজয়বর্গী, তারা নেই আজকে। কোথায় তারা বলুন তো? ওই সিকিউরিটি ছেড়ে ঘুরতে, সিকিউরিটি ছেড়ে দিলীপ বাবুকে মেরে দেবো, কেটে দেবো, শ্মশানে পাঠিয়ে দেবো, অনাথ করে দেবো, এই ধরনের মন্তব্য করতে এখন সিকিউরিটিটা ছেড়ে করুক। ওনারা কোন মন্তব্যটা কোথায় করতে হবে, কোন
কর্মী সভায়, ইনডোর সভায় কোন মন্তব্য করতে হবে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আর জনসমাবেশে সাধারণ মানুষ যেখানে আপনার কথা শুনছে সেখানে কি কথা বলতে হবে সেই নলেজটুকু রাখে না, তাদেরকে বিশ্বাস করা বোকামি হবে। আর একবার কোন বিশ্বাসে আপনারা আবার উঠে দাঁড়িয়ে বিজেপির জন্য লড়াই করবেন আমাকে জানাবেন। আবার আপনারা 5 বছর খাটবেন, মাঠে নামবেন, লড়াই করবেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে, তারপরে আবার কেন্দ্রের থেকে পোত পাকা কিছু নেতা এসে সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়ে যাবে। তাই রাজনীতির জায়গায় থাকুক। আমি কথা দিচ্ছি 72 ঘন্টা সময় দিচ্ছি তৃণমূলকে। এর মধ্যে যদি কোনো পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স বন্ধ না করে, পশ্চিমবঙ্গে যেটা চলছে, আমাদের হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচারটা হচ্ছে সেটা যদি বন্ধ না হয়, আমরা হিন্দু সেবা দলের পক্ষ থেকে রাজভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসব। যতক্ষণ না মৃত্যু হবে ততক্ষণ আমরা না খেয়ে সেখানে বসে থাকব। তাই যারা আমাকে সমর্থন করবেন, আমাদেরকে সমর্থন করবেন, সঙ্গে থাকবেন। আর যারা সমর্থন করবেন না, দূর থেকে মন্তব্য করবেন, গালমন্দ করবেন, দূর থেকে নেতাদের দালালি করবেন, তারা করতে পারেন, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু যারা আজকে এই দুঃসময়ে কর্মীদের জন্য লড়াই করতে চান, যাতে কর্মীরা সুরক্ষিত থাকে, তাহলে অবশ্যই সমর্থন করবেন। এবং এর থেকে বেটার যদি কোনো আপনাদের কাছে সাজেশন থাকে, যেটা করলে ভালো হয়, ওটা করলে ভালো হয়, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, ছিলাম, আছি, থাকবো। একসাথে লড়েছি, মরলে একসাথে মরবো। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন। জানি থাকতে পারছেন না, এই মত অবস্থায় থাকা সম্ভব না, তবুও বলছি জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়, জয় श्रीराम। नमस्कार, मेरा नाम संगीता चक्रवर्ती है और मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार के लिए काम करती हूँ। मैं पूरा न्यूट्रली आज तक काम कर चुका हूँ, कोई भी पार्टी के लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठाए हूँ। लेकिन आज मुझे सच्चाई आप लोगों का सामने लाना होगा, क्योंकि मेरा जान का ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ममता बनर्जी खुद। क्योंकि इतना दिन से मैं जो करके आ चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मोदी का विरोध करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो लीडर है, मोदी जी का विरोध करते हैं, सेंट्रल का विरोध करना एकदम राज्य का एकदम सही चीज है, तरीका भी है। लेकिन एक चीज आप ममता बनर्जी के बारे में जानते भी नहीं हो, वो मैं आज आपको खुलासा करना चाहती हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हिंसा, राजनीतिक हिंसा में विद इन 1 ईयर में 120 का ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो चुका है। मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में 7,500 का ऊपर आम आदमियों का ऊपर जो हत्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसका ऊपर भी कंप्लेन कर चुका हूँ। और पुलिस का बारे में भी FIR कर चुका हूँ। मैं DG का, SP का, DM का, हर मतलब जिला का हर अधिकारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भरपाई एकदम जालियाती के साथ जुड़ा हुआ है, उसका खिलाफ पूरा कंप्लेन कर चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से, विद इन 15 दिन से मेरा ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वो भी FIR नहीं किया है ममता बनर्जी ने। क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है। बाकी उनका सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप TMC बनो, वो भी तालिबानी प्रोसेस में। अगर आप TMC नहीं बनते हो तो आपका घर का सामने TMC कैडर लोग बम और बंदूक लेके घूमता है। पश्चिम बंगाल में अभी बम बंदूक में भर चुका है। हर घर में TMC का नेता लोगों का अगर घर में खोजेंगे तो आपको बम बंदूक दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप TMC नहीं बनोगे तो आपको हत्या कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स कंप्लेंट डाल के आपको जेल का सिलाखों में अंदर आपको किया जाएगा। यहाँ का पुलिस बन चुका है माओवादी, क्योंकि पुलिस का हाथ में अभी इतना पावर दे दिया है ममता दीदी ने। क्योंकि ये पुलिस का काम है तोलाबाजी करना और उसका सिर्फ पैसा, मतलब अभी पश्चिम बंगाल में पुलिस लोगों के पास करोड़ों का फंड हो चुका है। ये आवाज मैंने जब उठाया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तब मेरा खिलाफ एक FIR हुआ था, उसका बारे में भी तब मैंने चैलेंज लिया था। अभी मेरा खिलाफ 3 FIR दर्ज कर दिया है। पश्चिम बंगाल का हमारा घर का नजदीक पुलिस सुपर भास्कर जी ने, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया गया है किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल का अंदर भरो। अभी देखो पश्चिम बंगाल में संगीता चक्रवर्ती का जेल में भरो, ये ममता दीदी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका बारे में हर चीज का एविडेंस मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया, मैं किसी और संस्था को नहीं दिया हूँ। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसा जगह है जहाँ निरपेक्ष तदंत होता है और मैं वही जगह पे डाली हूँ। आप लोगों को अगर ये 7,500
का कंप्लेंट का जानना है तो आप लोग पहुंच जाइए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ममता दीदी का कितना बड़ा तानाशाही चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में। और सेकंड थिंग सुनिए, मेरा घर का सामने टीएमसी गुंडा लोगों को खड़ा कर दिया गया है क्योंकि वो मेरा घर में अटैक करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। कभी भी अगर मैं मर भी जाऊंगी तो एफआईआर सिर्फ ममता दीदी के नाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही गुंडा है, उसका नाम है ममता बनर्जी, और उसका जितना सारा पुलिस है वो सब अभी तोलाबाज, चीटिंगबाज, जो चोर, सब कुछ, मेरुदंड कुछ नहीं है इन लोगों का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हर सुबह भास्कर बनर्जी जो बर्धमान का प्रोमोटेड आईपीएस ऑफिसर, वो हर सुबह होता है 41 का नोटिस मेरा घर का सामने लगा के चला जाता है पुलिस देके, क्योंकि उसका काम ही हो गया है कि किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल का अंदर करो, क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही है। अभी दीदी उसका नौटंकी पूरा खत्म हो चुका है, वो जितना भी पैदल चलता है, जितना भी फालतू बकता है, उसका बारे में सबको पता चल गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आप रोहिंग्या हो तो आपको घर मिलेगा, पानी मिलेगा, जगह मिलेगा, लेकिन अगर आप टीएमसी का खिलाफ हो, टीएमसी के बारे में कुछ भी बताओगे तो आपको जेल का सिलोका का अंदर रखा जाएगा। मैं अगर कुछ भी होता है मेरा और मेरा फैमिली के साथ, इससे पहले भी मैं बताया था कि ममता बनर्जी पूरा रेस्पॉन्सिबल है, उसका पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, और मैं पूरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरा कमीशन का सामने जो कंप्लेंट रखा हुआ मेरा मरने के बाद, सबका ऊपर तदंत होना चाहिए और सबका ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, सारा भारत वर्ष के लिए खतरा है। ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये पश्चिम बांग्लादेश से भी कठिन जाएगा, खतरनाक जगह बना दिया है। मैं चाहती हूँ ममता बनर्जी का ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, अगर मेरा और मेरा फैमिली का ऊपर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी जितना सारा एक्टिविस्ट है सारा देश में, आप लोग जाइए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, मेरा जितना सारा 7,500 का ऊपर कंप्लेंट खोल के देखिए, उसमें आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा कि पुलिस और प्रशासन यहाँ का कितना बड़ा कानून तोड़ के रखा है और खुद माओवादी बन चुका है सिर्फ ममता बनर्जी को बिठाने के लिए। पुलिस और प्रशासन का ऊपर हमारा कोई भी आस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकार कर्मी का ऊपर भी हर रोज झूठा कंप्लेन लगाया जाता है। तो आम आदमियों का ऊपर क्या हो सकता है, आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। और मेरा इस वीडियो को इतना वायरल करे कि ममता बनर्जी का नकाब पूरा खोल जाए, उसका सच पूरा सामने आना चाहिए सबका सामने। वो जितना सादा सफेद साड़ी पहनती है उतना ही गंदी है, उतना ही घटिया है, उसका बारे में जितना कम बताए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने उनको जो आज सीएम बना के जो गलत हमने किए हैं उसका भुगत जब हम लोग भुगत रहे हैं, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में आम आदमियों के साथ। यहाँ पे हर रोज गोली से, ओपन बंदूक से, मशीन गन से गोली करके उड़ाया जाता है, लेकिन आप लोग कोई आवाज नहीं उठाते हो। मोदी जी का खिलाफ बोलने वाले लोग अच्छा हो जाते हैं, और जब भी कोई ममता बनर्जी का खिलाफ बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। धन्यवाद। मेरा इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए।
मान जाइए, घरों में रहिए, खुशियां मनाइए, बधाइयां दीजिए, लेकिन जिंदगी रहेगी तभी तो ईद बनेगी। अगले साल भी तो ईद मनानी है। ये जान हथेली पर लेकर खुद मौत को ललकारने की नई तस्वीरें हैं। ये कोरोना पर देश को हराने की सीरीज का नया त्योहार है। जब कोरोना काल में सावधान ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, तब हैदराबाद में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाकर ये भीड़ ईद की खरीदारी पर निकली है। सोच से संक्रमित ये लोग कैसे भूल गए कि इस वक्त देश में महामारी से कैसे हाहाकार मचा है। 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की दुश्मन ये भीड़ कैसे भूल गई कि ये ईद नहीं संक्रमण की शॉपिंग हो सकती है। जबकि धर्मगुरु समझा रहे हैं घरों में रहकर त्योहार मनाएं। इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। इसका मतलब ये है कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। लेकिन धर्म गुरुओं की नसीहत पर संक्रमण की शॉपिंग करने वाली भीड़ की जिद भारी है। ये मुंबई का भिंडी बाजार है, जहां इस भीड़ का कोरोना के वायरस को खुला न्योता भी है और दूसरे लोगों के लिए संक्रमण का खतरा भी। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यूपी के फिरोजाबाद में भी भीड़ की डरावनी तस्वीर दिखी और चंदौली समेत कई शहरों में भी यूपी में लॉकडाउन के वक्त सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी चीजों की खरीद की छूट है और इस छूट में संक्रमण की कैसी लूट मची, ये उसी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां दुकानदारों को फिक्र इस बात की है कि भीड़ कम क्यों है। ईद के लिए ये बिजनेस आता है, तो इस वक्त कोरोना का जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग का बिजनेस में बहुत अच्छा बिक्री होता था, क्राउड होता था, कस्टमर आता था, सेलिंग अच्छा होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पूरा मतलब सेलिंग रुका हुआ है। इस साल तो कोरोना का वजह से आदमी उतना नहीं है, सबका दुकान में माल पड़ा हुआ है, बिक्री नहीं है। यानी इस देश ने ना तो चुनावों से सबक लिया, न कुंभ से और न त्योहारों की भीड़ से। कोरोना के वक्त में राजनीति और धर्म ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश में होली और चुनाव से पहले 1 मार्च 2021 को कोरोना संक्रमण के 12,286 नए केस मिले। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव और 29 मार्च को होली थी। रैलियों और खरीदारी के लिए भीड़ निकली और नतीजा ये कि 1 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए केस मिले। 1 अप्रैल से ही कुंभ शुरू हुआ, चुनावी रैलियां भी चलती रहीं और 1 महीने में 30 अप्रैल को देश में कोरोना के नए केस मिले 3,86,555। चुनाव और कुंभ खत्म हुए तो अब देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने की जिम्मेदारी ईद की भीड़ ने ले ली। अस्पतालों में जगह नहीं है, मगर ईद की इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन की कमी से देश की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पूरे देश में सख्त लॉकडाउन हो, जैसे इस वक्त श्रीनगर में है। ईद के मौके पर बाजार सुनसान है, लोग घरों में हैं, क्योंकि पुलिस घर से बिना जरूरत निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वबा ऐसी है कोरोना कि ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकलेगी जो इसमें लापरवाही बरतेंगे। हमारी कोशिश है हम मिलके ये लड़ाई हमें लड़नी है सबको। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में ही घर से बाहर आएं और इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। आज भी देश में 3,48,000 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। मान जाइए, घरों में रहिए, खुशियां मनाइए, बधाइयां दीजिए, लेकिन जिंदगी रहेगी तभी तो ईद बनेगी। अगले साल भी तो ईद मनानी है। ये जान हथेली पर लेकर खुद मौत को ललकारने की नई तस्वीरें हैं। ये कोरोना पर देश को हराने की सीरीज का नया त्योहार है। जब कोरोना काल में सावधान ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, तब हैदराबाद में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाकर ये भीड़ ईद की खरीदारी पर निकली है। सोच से संक्रमित ये लोग कैसे भूल गए कि इस वक्त देश में महामारी से कैसे हाहाकार मचा है।
2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की दुश्मन ये भीड़ कैसे भूल गई कि ये ईद नहीं संक्रमण की शॉपिंग हो सकती है। जबकि धर्मगुरु समझा रहे हैं घरों में रहकर त्योहार मनाएं। इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। इसका मतलब ये है कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। लेकिन धर्म गुरुओं की नसीहत पर संक्रमण की शॉपिंग करने वाली भीड़ की जिद भारी है। ये मुंबई का भिंडी बाजार है, जहां इस भीड़ का कोरोना के वायरस को खुला न्योता भी है और दूसरे लोगों के लिए संक्रमण का खतरा भी। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यूपी के फिरोजाबाद में भी भीड़ की डरावनी तस्वीर दिखी और चंदौली समेत कई शहरों में भी। यूपी में लॉकडाउन के वक्त सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी चीजों की खरीद की छूट है और इस छूट में संक्रमण की कैसी लूट मची, ये उसी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां दुकानदारों को फिक्र इस बात की है कि भीड़ कम क्यों है। ईद के लिए ये बिजनेस आता है, तो इस वक्त कोरोना का जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग का बिजनेस में बहुत अच्छा बिक्री होता था, क्राउड होता था, कस्टमर आता था, सेलिंग अच्छा होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पूरा मतलब सेलिंग रुका हुआ है। इस साल तो कोरोना का वजह से आदमी उतना नहीं है, सबका दुकान में माल पड़ा हुआ है, बिक्री नहीं है। यानी इस देश ने ना तो चुनावों से सबक लिया, ना कुंभ से और ना त्योहारों की भीड़ से। कोरोना के वक्त में राजनीति और धर्म ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश में होली और चुनाव से पहले 1 मार्च 2021 को कोरोना संक्रमण के 12,286 नए केस मिले। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव और 29 मार्च को होली थी। रैलियों और खरीदारी के लिए भीड़ निकली और नतीजा ये कि 1 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए केस मिले। 1 अप्रैल से ही कुंभ शुरू हुआ। चुनावी रैलियां भी चलती रहीं और 1 महीने में 30 अप्रैल को देश में कोरोना के नए केस मिले 3,86,555। चुनाव और कुंभ खत्म हुए तो अब देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने की जिम्मेदारी ईद की भीड़ ने ले ली। अस्पतालों में जगह नहीं है, मगर ईद की इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन की कमी से देश की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पूरे देश में सख्त लॉकडाउन हो, जैसे इस वक्त श्रीनगर में है। ईद के मौके पर बाजार सुनसान है, लोग घरों में हैं, क्योंकि पुलिस घर से बिना जरूरत निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वबा ऐसी है कोरोना कि ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकलेगी जो इसमें लापरवाही बरतेंगे। हमारी कोशिश है हम मिलके ये लड़ाई हमें लड़नी है सबको। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में ही घर से बाहर आएं और इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। आज भी देश में 3,48,000 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना की जो रफ्तार धीमी पड़ी है, आशंका है कि ईद की ये भीड़ फिर तेज कर सकती है।
আমি এসব করে